Okay. So, hello everyone. I'm Yesh Mantri. One, I'm one minute, sir. Let me introduce. okay. Fine. Good afternoon to one and all present here. I am Anushka Bajpayee, active IEEE member. Welcome you all to today's session, that is a special webinar on Roadmap to DSA. I bid a warm welcome to Dr. Aparna Dikshit ma'am, IEEE PSIT Student Branch Counselor, and to all the IEEE members present here. I also wish you all happy Gandhi Jayanti, and I'm glad that we are organizing this event today. Let me tell you that this event is one from the series of events that we are organizing on the occasion of IEEE Day. The motivation behind this event is to make students understand data structures and algorithms and to develop programming solving skills. Now I request our guest speakers, Mr. Yash Mantri, Amazon SDE from VNI, who graduated from VNIT and was an active intern at Tata Research Development and Design Center to continue the further event. So please. So, hello everyone. I'm Yesh Mantri. I joined Amazon recently for past 3 months back as a software developer engineer, and I applied Amazon through off-campus. And so today I would be presenting to you the roadmap to DSA and how effectively you can learn DSA. So, Anushka, can I share my screen? Yes, sir, sure. Okay, I'll take over the screen share now. So let me know once it's visible. Yes, sir, it's visible. Okay. So roadmap to DSA. So in today's session, I would be covering why DSA, why it is so important, core concept of DSA, and what you should learn in DSA. Third is computer fundamentals data necessary for the interview, and fourth is off-campus process, how you can get the off-campus opportunity. So let's begin. Now this is a very famous quote which always motivates me. When it feels scary to jump, that is exactly when you jump. Otherwise, you end up staying in the same place for your entire life. So even if you might feel scary that you don't know DSA or things like dynamic programming or graph, if this sounds scary to you, that then this is the right time for you to start. Otherwise, you would end up staying at the same place for the rest of your life. Okay. So coming to why DSA. So DSA helps company to have a basic screening for the candidate. So DSA also helps to improve checks the problem solving skills. It helps to write the more efficient code. It helps to improve your debugging skills and for cracking the interviews. So whenever a candidate comes to the company expects that candidate to have a good problem solving skills and other things like web development or machine learning. Well, all these things can be taught, but a company wants that a candidate should have a good problem solving skills. So whenever a company gives a problem to that candidate, he should be able to think in a good manner and should be able to solve that problem in an efficient way, or he should be able to debug the problems which are coming in the programs. So these are few expectations for the companies. So generally DSA covers almost 70 to 80% of interviews when you're speaking from the companies like Google, Amazon, etc. But when you speak of startups, their main focus is on the project and they give less focus on DSA side. So but still DSA is always necessary even if you are graduate or you are just passing out of a college or you have 5 to 6 years of experience. Still DSA would be asked to your interview. So recently I was having a talk with a principal engineer who joined recently and almost has experience of 20 years. So he was also asked DSA for 3 rounds. That's why DSA is important to crack the interviews, and it gives company a basic screening of candidate if the candidate is good enough to solve problems or not. Now let's move further.
And I want to keep this session very interactive. So if you have any questions related to anything, you can ask me in the middle of the session. So that won't be any issue. Okay. So coming to the core concepts in DSA. So first thinking about the programming languages. तो बहुत बार क्या होता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करे कि C++ चूज करे, जावा चूज करे, पाइथन चूज करे, गोलैंग ये वो. तो student get too much confused on choosing these programming languages. So my personal recommendation is to choose any of one of the programming languages and build a strong foundation on it. So let's say I choose C++ as my primary language. So I should know what is STL, that is the standard template library. I should be able to write for loops, if else condition. I should be able to write functions. I should be able to solve basic questions like printing patterns or printing simple printing statement, everything. This should be, I should have a basic foundation on the language. Otherwise, I won't be able to go ahead with the data structures which are there. So तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी चूज करो, लेकिन उस पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकंड चीज इज लर्निंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अगर अब तुम्हें कोई भी कोड मिलता है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट इट्स स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज वेरी नेसेसरी. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, you will write a code and you won't be able to explain why the space complexity is O of n or O of n square and why can't it be further optimized. So you should be able to understand these basic concepts of space and time complexity and have a strong grip on the foundation of language. So before starting, this things should be clear before starting DSA, these things should be clear to you. Now coming to one of the most important and basic concept of data structures and algorithm, which is arrays and strings. Now in arrays and strings, few of the famous topics which are there is cadence algorithm, sliding window problem, two pointers problem, and another is stock buy and sell. These are the few very important concepts which mainly are asked in interviews. So even in my Amazon interview, I was asked question related to two pointers. In my other interview of Oracle, I was asked a question regarding the sliding window problem. So if I have seen that these companies asked you questions around this, and for practicing there are many resources. There is CodeChef, there is Codeforces, there is Geeks for Geeks and LeetCode. You can practice any of them, but this basic concept should be very clear to you. And why I've given this, because these are not intuitive to think. You can't think means ऐसा खुद से ऐसा सोचना कि टू पॉइंटर्स अभी यूज कर सकते हैं या फिर इसमें स्लाइडिंग विंडो यूज कर सकते हैं. सो ये इंट्यूटिवली नहीं आएगा. तो ये सब अगर तुम्हें पहले से पता है और इसकी प्रैक्टिस की है तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू थिंक इन दैट डायरेक्शन. सो if you are learning arrays and string, these topics are must do. Now coming to the multi-dimensional array. Multi-dimensional array are basically 2D arrays. So इस पे basic question रहते हैं like rotation of array. Rotate the array right, rotate the array left, rotate array by 180 degrees. These are few of the questions which are generally asked in interview. Second type of problem which comes in the traversal based question in the multi-dimensional array, like zigzag traversal, traverse in the diagonal fashion, and other kind of problems. So these are the basic problems which need to be covered in array. And if you are giving a interview for startups or any mid-range company, so basically they mainly focus on arrays and string. And if you are good with this, there is a high chances that they won't be asking you any further questions on the any other DSA patterns or any other thing. And mainly other focus would be related to your projects. Okay, so coming to the next topics. So other is recursion and backtracking. So इसके आगे जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे उसमें रिकर्शन का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा. मतलब विदाउट रिकर्शन
आप आगे जा ही नहीं सकते हो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको समझना होगा। एंड रिकर्शन स्टार्टिंग में जरूर डिफिकल्ट लगेगा समझने के लिए कि क्या हो रहा है, ये कैसे सॉल्व हो रहा है और कि हम क्या करें। तो रिकर्शन स्टार्टिंग में काफी डिफिकल्ट होता है समझने में, ये डिफिकल्टी मैंने भी फेस की थी। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने जो भी क्वेश्चंस लूप से सॉल्व किए तो आप एक बार सोच सकते हो कि क्या मैं ये क्वेश्चन रिकर्शन से कर सकता हूँ, लाइक फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो गया या फिर पैलिंड्रोम का क्वेश्चन हो गया। तो if you start thinking in that direction, recursion will start coming intuitively to you. तो आपको ऐसा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यार रिकर्शन की एंड कंडीशन क्या डालूं, रिकर्शन का लॉजिक क्या लिखूं। तो अगर आपने रिकर्शन प्रैक्टिस की तो आगे के जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें आपको काफी यूजफुल रहेगा और रिकर्शन पे स्ट्रांग होल्ड रहना काफी जरूरी है। सेकेंड इज डिवाइड एंड कॉन्कर, ये काफी फेमस है, ये काफी सारे अल्गोरिदम्स में भी यूज होता है, जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया उसमें काफी यूज होता है ये सब। तो ये बैक ट्रैकिंग से ही होता है, तो बैक ट्रैकिंग का ये एक फेमस एग्जांपल है डिवाइड एंड कॉन्कर। सो मूविंग अहेड, आपको अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग ये इसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now, coming to the sorting algorithms. So there are basically 4 sorting algorithms which the candidate should be mainly aware of. First is insertion sort, selection sort, merge sort, quick sort. So even in interview, you won't be given a direct problem statement. So implement insertion sort or implement selection sort. There would be some problem statement, and from that problem statement, you need to think how can the insertion sort can be used in this problem, or selection sort can be used in this problem. So in that direction you need to think. So there won't be any question like implement selection sort. So you for that you need to understand the basic logic for that. And for quick sort, as I said, recursion is very important. You need to understand how recursion is happening, and for the merge sort you need to have a strong hold on divide and conquer. Moving further, binary search. Now binary search is a very important topic, and it might seem very easy to you how binary search is, but the level of question I have seen on binary search varies a lot. I have seen very difficult questions on binary search. So there can be various variation of binary search, like binary search on arrays, binary search on matrix, or find the index of element, like find the kth element which is greater than this elements or lesser than this element. So binary search is one of the very important topics. ये इसलिए भी important बन जाता है क्योंकि इसका जो time complexity है वो है O of log of n. So if there is a problem and if you think a binary search can be used, so that problem time complexity of problem reduces drastically. So let's say if I have O of n से मैं O of log n में ला रहा हूँ तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज काफी एफिशिएंट है, इसलिए बाइनरी सर्च पे एक अच्छा होल्ड होना काफी जरूरी है। और बाइनरी सर्च ऑन मैट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक find the element in the matrix, find the element in a sorted matrix with the sorted rows and sorted column. तो उस लेवल पे भी तुम्हें थिंक करते आना चाहिए कि इससे कैसे करे क्या करे। तो बाइनरी सर्च एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इज लाइक एवरग्रीन, एंड लिंक लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, लिंक लिस्ट का कंसेप्ट काफी इजी है, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपकी एज केसेस काफी रहती है कि जैसे कभी हेड नल हो गया या फिर लिंक लिस्ट में बस एक ही नोड है। तो उस वजह से जब आप कोड लिखते हो तो इंटरव्यूअर को समझता है कि आप कितने एफिशिएंटली कोड लिख रहे हो और आप कितने सारे एज केसेस कवर कर रहे हो। तो लिंक लिस्ट में जो कुछ फेमस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं वो है रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट, फास्ट एंड स्लो प्रॉब्लम, आपके सॉर्टिंग प्रॉब्लम कि आपको लिंक लिस्ट दिए, अब इसे आपको सॉर्ट करना है। इसके बाद में लिंक लिस्ट दिए उसे मॉडिफाई करना है, लाइक डिलीट अ लिंक लिस्ट विद अ गिवन पॉइंटर,
या फिर आपका एडिशन ऑफ लिंक लिस्ट. सो दिस आर वेरी फेमस प्रॉब्लम इन लिंक लिस्ट. इवन इन माय बार रेजर राउंड आई वाज आस्क्ड टू रिवर्स द लिंक लिस्ट इन अ ग्रुप्स. तो आप देख सकते हो कि उसमें एज केसेस काफी रहती है, इसलिए लिंक लिस्ट इज वन ऑफ प्राइम टॉपिक्स फॉर रिक्रूटर्स टू आस्क. और अगर आप फैंग कंपनीज में इंटरव्यू दे रहे हो तो हाई चांसेस है कि आपको लिंक लिस्ट के ऊपर तो एक क्वेश्चन आ ही जाएगा. तो लिंक लिस्ट के ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड लिंक लिस्ट में उसके काफी वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे डबल लिंक लिस्ट हो गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया, इसे भी आप समझ सकते हैं. और इसमें वेरियस प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लाइक इफ द लिंक लिस्ट हैज अ लूप इन इट और नो लूप. सो ये सब टाइप के जो प्रॉब्लम्स है यू शुड प्रैक्टिस. एंड प्रैक्टिस के लिए तो मैंने पहले ही बताया था कि काफी सारे रिसोर्सेस वगैरह अवेलेबल है. नेक्स्ट इज योर स्टैक्स एंड क्यूज. स्टैक्स एंड क्यूज में जनरली क्या होता है ना कि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछते हैं. भले ही आपको पता है कि स्टैक कैसे काम करता है, स्टैक में टॉप वाला एलिमेंट डिलीट करते हैं या फिर क्यू में बैक साइड से इंसर्ट करते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू में वो पूछ लेंगे कि लेट से आपको एरे गिवन है एंड इस एरे से अब आपको एक स्टैक बनाना है. तो उस केस में आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन करते आना चाहिए. या फिर आपको एक एरे गिवन है, अब इससे आप क्यू बनाइए. तो जनरली कैंडिडेट्स को ये तो पता होता है कि डायरेक्टली मैं इनबिल्ट लाइब्रेरी से आप क्यू कैसे यूज कर लो या फिर स्टैक कैसे यूज कर लो, लेकिन जब उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंड लेवल पे, कि कैंडिडेट को एक बेसिक नॉलेज रहना काफी इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे काम कर रहा है, स्टैक कैसे काम करता है या फिर क्यू कैसे काम करता है. अदर देन दिस इसके काफी सारे एप्लीकेशन है स्टैक्स एंड क्यू के. और उसके बाद में LRU कैच, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैक्स एंड क्यू में. एंड ये काफी बार काफी सारे इंटरव्यूज में पूछे जाता है कि इम्प्लीमेंट द LRU कैच, उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं. तो दिस आर द स्टैक्स एंड क्यूज. अगर किसी को कुछ भी डाउट वगैरह हो अब तक के तो वो पूछ सकता है. आई एम फीलिंग कि मैं अकेला बस बोले जा रहा हूँ. एंड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन? You may post your questions in the chat box. Yeah. So I would consider this silence as no question and I would move ahead. Now coming to trees. Trees ऐसा टॉपिक है ना, इसका इसे समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है. और ट्रीज पे काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लाइक ट्री ट्रैवर्सल, आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया. फिर आपको एक एरे दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि इससे ट्री कंस्ट्रक्ट करो. तो ये भी एक काफी फेमस प्रॉब्लम है. देन देयर क्वेश्चंस आते हैं ट्री व्यूज. लेफ्ट व्यू प्रिंट करो ट्री का, बॉटम व्यू प्रिंट करो, लेवल ऑर्डर प्रिंट करो. तो इस टाइप के क्वेश्चन ट्रीज पे काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है. और फिर आपको कन्वर्जन प्रॉब्लम दे दिए जाएंगे अब कि आपके पास ये है, अब इसे ट्री में कन्वर्ट करो, या फिर ट्री है इसे एक सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करो, बाइनरी सर्च ट्री गिवन है इसे आप एक सॉर्टेड एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन इन ट्रीज. एंड ट्रीज की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आने में थोड़ा टाइम लगता है, कि ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से ट्रीज पढ़ना शुरू करूंगा और मुझे ट्रीज 100% आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. तो थोड़ा टाइम तो लगता है ट्रीज समझने में, लेकिन एक बार आपको समझ गया तो काफी इजी होता है. नो प्रायोरिटी क्यूज एंड हिप्स, ये काफी आजकल ट्रेंडिंग में शुरू है. मतलब मैंने जितने भी आजकल वो पढ़ता हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह, उसमें काफी क्वेश्चंस पूछते हैं प्रायोरिटी क्यू एंड हिप से. Even this first question, median in sorted stream. So this question was asked in my Amazon interview, and I was not able to implement this question completely, but I was able to tell them कि हाँ भाई ऐसा ऐसा रहेगा, आप दो हिप्स लीजिए, एक मेन हिप लीजिए, मैक्स हिप लीजिए एंड ऐसा ऐसा कीजिए. तो they were able to understand my logic
and they were convinced, but there was short of time, so I was not able to do it. सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन, दे देंगे आपको कि एक एरे दिया है, इसे हिप कंस्ट्रक्ट कीजिए, या फिर आपको हीप सॉर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एरे दिया है, अब इसे हीप सॉर्ट से कन्वर्ट कीजिए. अब क्या होगा कि अब कन्वर्जन बेस्ड प्रॉब्लम काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपने क्यूज भी पढ़ लिया, आपने स्टैक पढ़ लिया, आपने ट्रीज पढ़ लिया, तो आपको कुछ भी कन्वर्ट करने के लिए बोल देंगे कि ये एरे दिया है, इसे प्रायोरिटी क्यू में कन्वर्ट करो, या फिर प्रायोरिटी क्यू को एरे में कन्वर्ट करो. ऐसे कुछ भी कन्वर्जन क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और के बेस्ड प्रॉब्लम रहते हैं कि find the kth largest element, or the find kth smallest element in a stream, or anything. So these are very famous questions in priority queue and hips. And मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि आजकल पाइथन, C++ और एनी अदर जावा में भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मिल जाता है आपको कि प्रायोरिटी क्यू है तो there is always an inbuilt function, but you should be able to implement this by yourself. ये इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको आ गया, और आप इंटरव्यू में कई बार वो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आपको बोल देंगे कि आपको हीप इम्प्लीमेंट करना है या फिर आपको प्रायोरिटी क्यों इम्प्लीमेंट करना है. तो इस टाइम पे अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है तो टाइम पे वो चीज इम्प्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. सो नेक्स्ट इज ग्राफ्स. ग्राफ्स थोड़ा मुश्किल है. ग्राफ्स इज बेसिकली ट्रीज का एडवांस वर्जन. नाउ ग्राफ्स में अगर आपने डीएफएस और बीएफएस अच्छे से समझ लिया तो इसके अलावा आपको कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है ग्राफ्स में, क्योंकि उसके अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व होता है ग्राफ्स में. अगर आपका डीएफएस और बीएफएस अच्छे से आपने समझ लिया कि ग्राफ्स में कैसे डीएफएस हो रहा है या फिर कैसे बीएफएस हो रहा है, आप पेन और पेपर पे कर सकते हो, तो आपका ग्राफ्स ऑटोमेटिकली काफी स्ट्रांग हो जाएगा. और ये डीएफएस एंड बीएफएस आने के लिए आपका रिकर्शन आना बहुत जरूरी है. जैसे मैं पहले ही बोला था कि रिकर्शन ही आपका बेस बनेगा आगे जाने के लिए. तो ग्राफ्स में तो रिकर्शन I guess there was some network issue from my side. I'll share my screen again. So is my screen visible? Yes, sir. Okay. So there is one question also in the chat box, like how to master recursion. So how to master recursion? So Akash, to master recursion, first you need to start with the basic question. जैसे कि आपने कुछ क्वेश्चन फॉर लूप से किए होंगे, like find the factorial और print any pattern or anything. तो आप वो रिकर्शन से ट्राई करना चाहिए पहले. तो अगर आपको ये बेसिक प्रॉब्लम खुद से आ गए कि रिकर्शन पे कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आपको एक वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएंगी रिकर्शन की. फिर उसके बाद में क्विक सॉर्ट वगैरह आप खुद से ट्राई कीजिए, और रिकर्शन के ऊपर आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम ट्राई करोगे उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होंगी रिकर्शन के ऊपर. एंड रिकर्शन स्टार्टिंग में एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगता है रिकर्शन को खुद से आने के लिए, या फिर सोचने के लिए अरे हाँ इसमें तो मैं रिकर्शन लगा सकता हूँ. लेकिन अगर एक बार आपको समझ गया, फिर आप लूप्स के जगह पे रिकर्शन ज्यादा यूज करना शुरू करोगे. तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो रिकर्शन. ओके. सो ग्राफ्स में अदर देन दिस शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम रहते हैं काफी. उसके बाद में टोपोलॉजिकल सॉर्ट, कि अगर आपको ग्राफ दिए वो ग्राफ साइक्लिक है नहीं है, या फिर आपका वो डायरेक्टेड ग्राफ है अनडायरेक्टेड ग्राफ है, उसमें साइकिल डिटेक्ट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज हो जाता है. फिर ग्राफ इन अ मैट्रिक्स, मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, अब इस पे आप डीएफएस लगाइए या फिर पाथ फाइंड कीजिए मैट्रिक्स में. तो इन सब के लिए ग्राफ्स यूज हो जाता है. एंड ग्राफ्स थोड़ा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में ही बोलूंगा मैं.
एंड ग्राफ्स अगर आप कंपनीज लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह इन सबको टारगेट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ग्राफ्स या ग्राफ से एक क्वेश्चन 3 इंटरव्यू में तो पूछेंगे ही वो लोग, क्योंकि एक अब इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, वो कैसे सॉर्ट आउट करे कि ये कैंडिडेट अच्छा है या बुरा। तो ग्राफ से उन्हें समझ जाता है, हाँ यार इसे ग्राफ्स आता है, तो इट्स लाइक इसने किया है, डीएसए अच्छे से पढ़ा है, तो इट्स काइंड ऑफ फिल्टरिंग। तो अगर आप बड़ी कंपनीज के लिए टारगेट कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि ग्राफ्स का इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। एंड आपको इसके लिए काफी सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, लाइक मेनली फ्रॉम वेयर आई स्टडीड वाज यूट्यूब वाज अ ग्रेट रिसोर्स फॉर मी। मैं हमेशा यूट्यूब पे ही सर्च करता था। अगर डीएफएस भी पढ़ना है तो पहले यूट्यूब पे देखता था कि डीएफएस कैसे हो रहा है, 2-3 वीडियोस देखता था, जिसका पसंद है उसे समझता था, एंड फिर खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था अपने लोकल आईडी पे कि मैं डीएफएस अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ या नहीं। तो इस तरह से आप सीख सकते हो। नेक्स्ट इज डीपी। एक सेकंड। नॉट डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना यार, इतने सारे वेरिएशन है डीपी के। लाइक आप डीपी एरेस पे लगा सकते हो, डीपी आप स्ट्रिंग पे लगा सकते हो, डीपी आप ट्रीज पे लगा सकते हो। उसके बाद में पार्टीशन प्रॉब्लम होते हैं, आपके काउंटिंग बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो डीपी में क्या होता है कि आपका वेरिएशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना डीपी के लिए। तो आपको डीपी का कोर कंसेप्ट अगर समझ गया तो आप डीपी अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। और डीपी के लिए आदित्य वर्मा की यूट्यूब सीरीज है, मैंने वो फॉलो की थी एंड इट्स वेरी गुड। उन्होंने काफी सारे प्रॉब्लम कवर किए उनके डीपी सीरीज में। एंड डीपी जब तक कि आप खुद से इम्प्लीमेंट ना करो या फिर डीपी की खुद से प्रैक्टिस ना करो तो वो सॉल्व करना मुश्किल रहेगा। Sorry guys, I'm facing some internet issue today. I'll share my screen again. Sorry for the inconvenience. Okay. Okay, So sir. I was on DP. तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में वही यार कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे और उतने अच्छे से आप ब्रेक आउट कर पाओगे कि थिंक कर पाओगे कि इस पे डीपी लगेगा या नहीं लगेगा। या फिर आपको एकदम से इंटरव्यू में डीपी का क्वेश्चन पूछ लिया तो आपके खुद के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट अप्रोच डीपी आना ये बहुत मुश्किल रहता है। फर्स्ट अप्रोच आप रिकर्शन ही सोचोगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए, फिर रिकर्शन को ऑप्टिमाइज करने के बाद डीपी पे आओगे। तो इस तरह से डीपी में सोचते हैं। तो डीपी की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप देखोगे उतना बेटर है ना। इसके बाद में रिकर्शन के कुछ हार्ड क्वेश्चन है और रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग के कुछ हार्ड क्वेश्चन है, लाइक एन क्वींस प्रॉब्लम, परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग्स, रैट इन अ मेज। सो ये क्वेश्चंस मैंने बहुत कम देखे इंटरव्यूज में। लाइक मैंने काफी इंटरव्यूज दिए तो मुझे बस एक बार एक इंटरव्यू में परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन पूछा था। उसके अलावा तो ये जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है ये इसलिए होते हैं ताकि आपको खुद एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि एन क्वींस प्रॉब्लम में एन क्वींस प्रॉब्लम अगर आप खुद से लगा सकते हो तो आपको एक काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी कि बैक ट्रैकिंग कैसे वर्क करता है, या फिर रैट इन अ मेज तो उससे रिकर्शन कैसे वर्क करता है। तो ये इसलिए सबसे एंड में रखा था मैंने, क्योंकि अगर आपने डीपी कर लिया, ग्राफ्स कर लिया, ये सब कर लिया
तो उसके बाद में ये करना आपके लिए काफी आसान रहेगा। क्यों अगर आप पहले ही एन क्वींस प्रॉब्लम करते हो रिकर्शन में, तो आप सोचोगे कि रिकर्शन तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है और मैं कभी ये कर ही नहीं पाऊंगा, तो इसलिए ये सबसे आखिरी में करना बेटर है। नाउ अदर टॉपिक्स लाइक ट्राइज होता है, ग्रेडी अप्रोच होती है आपकी, बिट मैनिपुलेशन होता है, हैश मैप्स होते हैं, डीक्यूज होता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं नो डाउट, लेकिन इस पे काफी कम क्वेश्चंस है एंड वो आप देख सकते हो कोई भी गीक्स फॉर गीक्स पे या फिर लीड कोड पे की क्वेश्चंस कैसे। हैश मैप्स की मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा तो हैश मैप का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको आना चाहिए कि हैश मैप कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं इंटरनली। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्टली जो इंटरनल लाइब्रेरी उससे हैश मैप यूज कर रहे हो। तो इन सब का इम्प्लीमेंटेशन खुद से करके देखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हैश मैप और डी क्यूज तो आजकल स्पेशली ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफी सारे इंटरव्यूज में आजकल डी क्यूज पूछ रहे हैं। तो दिस आर सम ऑफ द टॉपिक्स इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। अगर किसी को अभी तक के कुछ भी डाउट हो कि कोई टॉपिक कैसे करे या फिर उसमें डिफिकल्टी आ रही है, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हो। Sir, can you refer some books for these topics? So one of the good books which I like are one is Handbook of Competitive Programming. आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा कहीं भी ऑनलाइन। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स। ये बुक तभी यूज करना जब आपको काफी इन डेप्थ जाना रहा, अगर वरना इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड इज आई यूज टू रिफर गीक्स फॉर गीक्स, वहाँ पे काफी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं तो इसको आप काफी अच्छे से समझ पाओगे। एंड if you are specifically targeting for interviews, there is one book called I'm forgetting its name, something interview preparation. It's a very good book. I would share the link. I would share the link with Anushka and she can share with you. So these are the few books which I referred. Other than this, there is abundance of resources available online. So mainly I used to refer Geeks for Geeks for learning the topics, other or YouTube. So it's up to you. You can choose. Okay, thank you, sir. Okay. Sir, Ayush is asking that can you give a short description of what trees are? What? Tries. Trees, I think it's trees there. It's tries, sir. Tries. So tries are basically, you can understand. Do you know dictionary? Now, so dictionary, so to store dictionary, we use tries. So ट्राइज में बेसिकली कैसा होता है ना कि आपका एक नल नोड रहता है और आपको अगर वर्ड स्टोर करने हैं तो आप वर्ड कैसे स्टोर करोगे, तो हम उसके लिए ट्राइज यूज करते हैं। जैसे आपको ग्रिड स्टोर करना है और आपको ग्रिडली स्टोर करना है, तो इसमें ग्रिड जो है वो कॉमन है, तो हम जनरली ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं इसके लिए। तो ट्राइज वही कंसेप्ट है कि आप उसमें एफिशिएंटली वर्ड वगैरह स्टोर कर सकते हो। थैंक यू सर। एंड अगर आपको कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है ट्राइज का तो देखते से ही समझ जाएगा, क्योंकि इसके काफी 2-3 ही क्वेश्चन रहते हैं एंड दे आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। या आई वुड शेयर द पीपीटी after the session. So these are some of famous topics and about projects. So yeah, projects. Now depending on projects, like in what kind of projects you do, so basically try to cover every domain. Like in my college I did a project related to web development. Other than this, I did a project related to machine learning. Then I had a internship in which I did
some work on NLP, which was natural language processing. So I had a various domains of project in my resume. So this kind of projects helps a candidate to stand out from other candidates. And बहुत बार डाउट आता है कि यार मैं प्रोजेक्ट करके ही क्यों नहीं कंपनी क्रैक कर सकता हूँ, या फिर मैं बस प्रोजेक्ट करूं, मुझे डीएसए नहीं करना। तो आप जरूर कर सकते हो, लेकिन होता क्या है ना कि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे आपसे वो डीएसए के क्वेश्चन पूछेंगे। तो भले ही आपने कितने भी अच्छे प्रोजेक्ट किए हो, तो प्रोजेक्ट किए होंगे, लेकिन आपको डीएसए आना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक होती है, उससे डीबगिंग स्किल्स चेक होती है। प्रोजेक्ट में जनरली क्या होता है कि आप ग्रुप प्रोजेक्ट रहता है, तो उसे इंटरव्यूअर को भी समझ नहीं आता है कि आपने इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूट किया है। एंड देयर इज आल्सो अ टेक्निक टू हाउ यू टेल योर प्रोजेक्ट। लेट्स से मैंने कोई प्रोजेक्ट किया XYZ, तो मैं इंटरव्यूअर को ऐसे नहीं बताऊंगा कि मैंने पाइथन में ये यूज किया है, मैंने ये लाइब्रेरी यूज की है। इंटरव्यूअर को मतलब ही नहीं है कि आपने क्या यूज किया है। मैं ये बताऊंगा कि मैं ये सोच रहा था कि ये प्रॉब्लम है, एंड मैंने ये सोचा कि इसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया, देन आई थॉट कि मैं इस पे प्रोजेक्ट बनाता हूँ, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन XYZ। देन मैंने टेक्नोलॉजी डिसाइड करना था, तो मैंने सोचा कि पाइथन काफी बेटर रहेगा, फिर इससे ये इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। अगर आप इस स्टोरी टेलिंग वे में प्रोजेक्ट बता सकते हो ना अपना, तो एक काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, इंस्टेड ऑफ कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने पाइथन की ये लाइब्रेरी यूज की है, ये ऐसा किया है। इतने डेप्थ में ना 1 घंटे का इंटरव्यू रहता है यार, आप आपका पूरा प्रोजेक्ट नहीं समझा सकते हो। तो आप इम्पैक्ट कितना क्रिएट किया है उस प्रोजेक्ट ने, वो ज्यादा मैटर करता है, इंस्टेड ऑफ कि कैसे किया है आपने। तो ये मैं बोलना चाहूंगा। एनी अदर क्वेश्चंस? Now let's move further, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कुछ कंपनीज होती है लाइक अडोबी वगैरह, वो इन कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन पूछ लेती है। लाइक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया। ये 4 बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है ये आपको अच्छे से आने चाहिए। काफी दफा आपको फैंग कंपनीज में भी लो लेवल डिजाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लाइक फिर उसमें आपको ऊप्स का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, लाइक डिजाइन अ पार्किंग स्लॉट, और डिजाइन अ स्कूल अटेंडेंस सिस्टम, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो उसमें आपको अगर ऊप्स के कंसेप्ट ही अच्छे से नहीं आते, तो तब आपको इश्यू आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बेसिक थ्रेडिंग क्या होती है, थ्रेडिंग को थोड़ा कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन पार्ट भले ही ना है, लेकिन थ्रेडिंग के बारे में नॉलेज रहना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका डीबीएमएस हो गया, डीबीएमएस में आप एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हो। तो कुछ कुछ इंटरव्यूज में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे देंगे कि राइट अ सीक्वल क्वेरी फॉर दिस, तब आपको वो बेसिक सीक्वल क्वेरी लिखते आना चाहिए। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि डीएनएस क्या होता है, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन क्या होता है। उसके बाद में HTML वर्सेस HTTPS वर्सेस HTTP में फर्क क्या होता है। तो ये सब का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज रहना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि इंटरव्यू बिट करके एक वेबसाइट है, वहां पे इसके कुछ क्वेश्चन है, टॉप 50 या फिर टॉप 40 क्वेश्चंस कुछ है, एंड यू शुड रीड देम। अगर आप किसी का कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं हो, या फिर उसने कभी टॉपिक्स पढ़े ना हो, तो उसने वो तो एटलीस्ट पढ़ लेना चाहिए, ताकि अगर वो इंटरव्यू में जाता है तो वो इन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर जरूर कर पाए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया और आप कंप्लीटली ब्लैंक हो गए, तब तो एक वो काफी खराब इंप्रेशन पड़ता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी गलत बोल दो। अगर आपको इंटरव्यू में होता है कि कुछ क्वेश्चन पूछ ले और आपको नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि सर ये मुझे नहीं पता, तो इतना वो जज नहीं करेंगे, लेकिन गलत नहीं बोलना चाहिए बेसिकली। ओके, नाउ कमिंग टू ऑफ कैंपस प्रोसेस। तो ऑफ कैंपस में हायरिंग जनरली जो होती है ना, वो मैंने देखा है कि हैकेथॉन्स के थ्रू काफी होती है। तो हम लोग ने एक हैकेथॉन दिया था, अमेजोन का ही कुछ स्मार्ट
ये था हैकॉन विथ amazon। तो उससे amazon का मुझे ये मिला था इंटरव्यू चांस। उसके बाद में आप रेफरल्स मांग सकते हो अपने कॉलेज के सीनियर्स को, या फिर उस कंपनी के करियर पेज पे जाके आप वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन करियर पेजेस पे डायरेक्टली जाके अप्लाई करना आई वुडंट रिकमेंड, क्योंकि आपका आप अकेले स्टैंड आउट होना इतने पूल ऑफ कैंडिडेट्स में काफी मुश्किल होता है। तो generally having a referral then applying through career pages is a good option. Second is making an ATS friendly resume। तो भले मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए होंगे, मुझे काफी अच्छे से डीएसए आता होगा, सब 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 कुछ है, लेकिन अगर मेरा रेज्यूमे ही मैंने अच्छे से नहीं बनाया, अगर मैं अच्छे से अपना सिंगल पेज में बता ही नहीं सकता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग के 4 साल में क्या किया है, तो इट्स ऑफ नो यूज। तो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना चाहिए। एंड इसके ऊपर आपको काफी सारा लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा कि, एंड काफी सारे वेबसाइट्स भी होती है जो आपका स्कोर कैलकुलेट करती है। अगर आप उस पर रेज्यूमे अपलोड करोगे तो आपका रेज्यूमे, एंड ऐसा भी नहीं कि काफी फैंसी रेज्यूमे बना रहे हो, कोई डिजाइनर कोई बैठा दिया कैनवा पे जाके कि तो ले भाई मेरा रेज्यूमे बना। इट शुड बी सिंपल एंड जनरली रिक्रूटर्स स्पेंड अराउंड 5 to 6 seconds ऑन योर रेज्यूमे। तो अगर आपका फर्स्ट लुक में रेज्यूमे अच्छा नहीं है तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट कि आपका आगे फर्दर स्क्रीनिंग पे जाएगा। थर्ड इज नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन। तो जितना ज्यादा आप नेटवर्क ग्रो करोगे, लेट से मुझे कल जाके नेटवर्क आपका जितना अच्छा रहेगा और उतना इजीली आप उस कंपनी के लोगों से कनेक्टेड रहोगे और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको इजीली रेफरल्स मिल जाए, या फिर आपका ऐसा हो कि मेरा नेटवर्क में जो रिक्रूटर है उस कंपनी का वही मेरे नेटवर्क में हो, तो आई कैन डायरेक्टली अप्रोच हर और हिम एंड आस्क हिम कि आई वांट टू वर्क फॉर योर कंपनी, कैन यू प्लीज रेफर मी। सो इफ अगर आप अच्छे से नेटवर्क करते हो लिंक्डइन पे तो भी आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एंड थर्ड इज आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ने चाहिए। अगर आप कोई भी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हो तो, या फिर कोई भी कंपनी आप एम कर रहे हो, लेट्स से अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो आपने उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ने चाहिए कि लोगों ने उसके लिए कैसे अप्लाई किया था, कैसे प्रेप किए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे काफी ज्यादा इंसाइट मिलती है कि हाँ हमने भी ऐसा करना चाहिए। अगर हम इस कंपनी के लिए जा रहे हैं, अगर मैं ओरेकल के लिए जा रहा हूँ तो मैंने इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, अमेजोन के लिए जा रहा हूँ तो इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो इससे आपको काफी ज्यादा अच्छा आइडिया आ जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। सो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। Thank you, sir. It was really an informative session. Now, I would like to request if you have any queries, you can put it in the chat box. How was your Amazon Hakon experience, and also give some tips regarding Amazon Hakon. So, Rahul, my team was the second runner-up in Amazon Hakon with Amazon. So, few tips that I would like to give is, first think of a good problem statement. If you have a good problem statement, then think on its solution. Second is presentation matters. I have seen in Hakon sorry. So yeah, second is presentation matters a lot. So while we were participating in Hackathon with Amazon, we did a absolutely beautiful presentation, and we used to work day and night to make that presentation more and more good. Third is make a good team. It's a team event, and if you have a team, let's say of 4 people and only 2 of them are working, so it's of no use. So whenever you are participating in any hackathon or anything, you just make sure that you have a great team with great people who are willing to work. So these are my few tips while participating in any hackathon. Forgot about Hackathon with Amazon. In any hackathon, if you are doing, just give your 100% and there is a high chance that you would win. And keep participating in hackathons. There are few advantages, I will tell you. So if you participate in a hackathon,
you would have a pool of projects to show off to recruiters or to add in your resume. Other than this, you get many hackathon have interview opportunities or directly getting selected for internship or full-time opportunities. So whenever you find any good hackathon, please participate in it, and it's a very good way to show off your skills as well and build project. Good afternoon, sir. Can you please share some tips on how to crack some good internships while we are in our second or third year? So if you are in your second year, I would recommend to start learning DSA. And if you are in second year, you have enough time, I would say, like you can take around 6 to 7 months uh, to strongly prepare on DSA fundamentals. Then you can do some competitive programming as well keep to keep in touch with the DSA. And other than this, having one or two good project on your resume is always a plus point, which would help you to stand out. So are you planning to have internship after your second year or after your third year? It would be a lot better if we get an internship while in our second year or as soon as our second year gets over. So after your second year gets over, so basically generally what student do is approach to the professors which are in NITs or IITs or the domain which you like to explore, or you can even approach to the professors which are in your college after the end of second year to ask them if they have any good project or anything, and you can work on it. And after third year, basically you can apply off campus because many companies takes third years as intern. So after second years you have limited option, or you can try for startups. You can try for startup definitely. Hello, Yash. This is Dr. Aparna Dikshit. Really, your talk was amazing. You have given all the thoughts what you have already experienced in your studenthood. So I think this would be very beneficial for our student, and they were listening sincerely. Even I was also feeling like now I'm a student, I should learn properly, I should listen your all experiences very sincerely. So but I was observing one of thing, like if we could do some project under your mentorship. Okay, so if you could guide our students, that will be also good for our student. Can you think on some collaboration? So see, to be honest, we can do projects definitely. I have few projects ideas. I can think of some projects, then we can discuss. Okay. So please, if you may involve ourselves in some projects, or if it, I think he has left, huh? Ma'am, there is a little glitch. She will be back in 1 minute. Yeah. We should wait, huh? No issues. Aditi, you can display the momentum. Anushka, you may share because I am in hospital. Okay. I just came here Sorry. My internet got disconnected. So Okay. yeah, Aparna ma'am, I was saying that for projects currently I just recently joined Amazon, and to be honest, I get very little free time to work on any other things, but I have a few project ideas which are lined up. If any of your students approaches me on for project ideas, or they need some guidance on some projects, I can definitely help them with it. But mentoring them on a project I would need to think about it. Maybe sometime in future I might. Sure, please let's know if once you get little time for our students, so that will be beneficial for our students, I think so. Yeah, Please definitely. go through that also, and we will share our project also with you in future. So please share your number with Anushka so that we can coordinate you as well. Yeah, Anushka has my number.
Okay. I Thank would you so love much. to collaborate with you on Yeah, projects. definitely. We would like to collaborate because we have a good segregation of students who are working hard in different domains. I think so. So they are working in different projects also, like drone or a robot, Yeah. and some health band for animal, and they are preparing some helmet for the people who are working inside the mines or some sewage system. Okay, so for labors, so we are looking these problems in fact, some of the students have completed their project also, but still some of the projects are going on. So, but these are just only, we can say just only not on a advanced level. So we want to put some applications on advanced level also, right? So we will Yeah, of yeah. course need your collaboration and your suggestion, your guidance over there. Yeah, sure, sure. I can surely, I would love to help on these projects because this projects really sounds great and I would Okay, help okay. in Thank you. any possible way. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would now request Devansh Tiwari to come forward and speak the vote of thanks. Now, I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of webinar. I would like to thank Mr. Pranay for making time from your busy schedule. I would also like to thank Dr. Aparna Dikshit ma'am for being a part of this event. I would also like to thank the audience who enthusiastically being present and all the seniors and co-mates who contributed with this event to make it a great success. We Thank all you. were very highly obliged and thank you, sir, for inspiring us with your words. Okay. Thank you. Thank you, sir. This is a token of thanks, a memento presented to you. I will mail you with the same. Okay. Thank you. Thank you for taking time out from your busy schedule, and it was really a very informative session. I now request the audience to switch on their cameras for a while so that we can take a group photo. I request everyone to switch on their camera for a while. I have shared my PPT link with you. So if anyone wants to go through it, they can refer it. Yes, sir, sure. And so we'll look forward in the future also to discuss about projects also, as ma'am said. Yeah. Sure, definitely. Thank you all. Have a nice day. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you.